Ramesh, can we have you on stage? Varun, Muran, and Pooja, big round of applause, ladies and gentlemen. Can we have you all on stage? That Before हम लोग स्टेज पर आ रहे थे, सबसे ज्यादा उत्सुक था वरुण की आई वांट टू शो एवरीबॉडी एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट. जब एक पिक्चर बनती है, ये जो प्यार पहले ही मिलता है. सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ रियली फैंटास्टिक ट्रेलर. पहले डेविड सर, आई हैव टू आस्क यू, दिस इज फैंटास्टिक, बट डज योर सन कोई विश लिस्ट देता है आपको? मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैं एक्शन स्टार, कॉमेडी स्टार, एवरी काइंड ऑफ स्टार आपकी पिक्चर में मुझे बनना है, बिकॉज इट्स ऑलवेज सो फैंटास्टिक. सो वेल डन ऑन द ट्रेलर सर, कंग्रेचुलेशंस. बट इनकी कोई विश लिस्ट आती है आपको ऑलवेज? He tries to better the scene also. या Yeah, he gives me everything what I want. But he does argue. I mean, every actor has to argue. या फ्रॉम द So- फर्स्ट फिल्म टू द फोर्थ फिल्म, हैज द आर्ग्यूमेंट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? No, no. He takes care of my health more in the film. No, but first off, thank you to the media. आप लोग फिर से आए हमारे लिए, so thank you. And thank you सारे जो fans थे, आप लोग भी फिर से आए, तो thank you. हम लोग यहाँ सिर्फ आपके वजह से, and genuinely thank you to the media, क्योंकि आप 2 बार आए, and हम सबको पता है मुंबई की गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए thank you, I love you too. इसलिए आप सबको फास्ट रन अप मिलेगा और एक फ्री आईफोन रमेश जी से. अब सब खुश है रमेश जी, देखा. रमेश जी को पसीना आ रहा है. सो रमेश जी, अब मैं आपको पूछूंगा, ये जो फन ऑफ सेट हो रहा है और जो इतनी ऑलरेडी सेलिब्रेशन एडवांस में हो रही है, सबको जो आईफोन मिल रहा है, बट आप मेरे को बताइए, इज द केओस ऑन सेट एंड ऑफ सेट, यू ऑलवेज लुक सो काम सर? क्या ऑलवेज? क्योंकि क्या आप जब डेविड जी से पिक्चर बनाते हो ना, कभी कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं. Right. वो क्या है, जो भी एक्टर इनको बोलता है ना ऐसे करो, नहीं मैंने जो बोला है वही कर, बात खत्म. फिर कोई भी हो, यू नो, वरुण हो, मुंडाल हो, पूजा हो, और बाकी सब एक्टर्स हैं जी. तो वो तो खैर इतना नहीं आर्ग्यू करते जितना वरुण ही करता है. इट्स ओके, वरुण को थोड़ा सा बनता है बिकॉज ही हैज द एक्सेसिबिलिटी समटाइम्स टू रीच होम आल्सो एंड डू इट. But the ladies, you all are looking fantastic, and I always say, when you make a very good-looking film also, ना, बहुत जरूरी होता है. The casting should be right. First of all, there's a lot of effort that goes into making sure that each shot is also right. Everyone is always out there making sure that the look should be great along with all the fun. How much fun was this boy to work with? Because he's a delight otherwise. और मैं वरुण धवन की एक बात बताऊंगा. I've known him for so many years. Fans के साथ में, लोगों के साथ में. Why we know each other, I should tell you guys. Yeah. My first film I did, Student of the Year. Salil was with us on every promotion. He taught me a lot of things. And He's you being- took your shirt off there also. because you taught me backstage. कि ऐसे करना. No, but I know Salil, so I'm so happy actually seeing you after all these years, Absolutely. looking the same. You haven't aged a day, and So have same you thing, not? ये yes. सब हम लोग ने plan करके आए थे हम लोग. But he's here. Niloufar is here. Who was there with me on my first film as well. She's embarrassed. She must have gone more into the seat, I think. Yeah. But no, it's just amazing that this man is actually making a film at this age. And in a time when we are questioning cinema, हर Friday को we all question, we all love cinema, हम लोग सब question करते हैं, ये चलेगी, वो चलेगी, ये होगा, वो होगा. I would just tell you all, this is a David Dhawan film. ये David Dhawan की conviction पे बनी है film. All out आपको हंसाने के लिए बनी है. And if my family has had one motto, it's been to make people laugh. Genuinely, my father has only one motto कि वो लोगों को हंसाए और बहुत हंसाए. And he's also scared of cats. No, but I have to say that about David sir. The main thing
is that वो हमेशा बोलते कि जो भी कर रहे हो ना conviction के साथ करो और तुम लोग ना आज बहुत सोचते हो इतना सोचो मत लोगों का हंसाना है and just do it with full love and conviction and that's something I really learned from David sir. Mrinal, you, or not just David sir also, you've got this madcapper and this really lovable guy, Varun as well. And he's, I've heard a lot of fun to have on the set. Is that a great PR story or is it true? That's true. Yeah? सच्ची में अंडे फूटे थे मेरे सर पर. I mean, we apart from that, we also had a lot of fun. In fact, you saw in the trailer, I was driving. We were in the middle of the ocean, and there were. Then we were in London doing Chunari Chunari. I think it's every girl's dream to be the heroine of David Dhawan sir, and it's such an honor, sir. Thank you. We met over a cup of chai, and he said, तुझे मैं ऐसे प्रेजेंट करूँगा जैसे अब तक किसी ने तुझे दिखाया नहीं है एंड दैट्स ट्रू एवरी टाइम आई सी माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन इवन राइट नाउ व्हेन आई वाज वाचिंग द ट्रेलर आई एम जस्ट इट्स लाइक बकेट लिस्ट आई एम सो हैप्पी and Varun, you are amazing. I think he's the Why best so? co-actor that I've ever worked with. But having said that, Pooja and Mrunal bonded really well. I think Varun would like for us to fight, Fight. but we never fought. His mission For my was always entertainment, for my Yeah, entertainment. for But- your entertainment. But I have to say, this trailer or this film, this title actually would not be possible without two individuals who are here with us. Can we please have on stage Annu, Malik Saab and Sameer Saab as well? Yes. I think Annu sir is to my, I mean, I know he's my dad's lucky charm, but he's my lucky charm also. वो कुर्सी ले आया ना? My first film was with them both. भाई कुर्सी दे दे बेटा तेरे बैठने के लिए नहीं है, दे दे कुर्सी. हाँ. Hi, sir. अनु मलिक सर, आप इतना सटल एंट्री नहीं कर सकते हो. वो लोग सब बोल रहे आग लगा देगा, आग लगा देगा. ये आग आपने कब लगाई थी? ये गाने का है जवानी तो इश्क होना, कब लगी थी आग? Congratulations to the entire team of Hai Jawani To Ishq Hona Hai, to Ramesh ji and Kumar ji, and of course my absolute dear friend David Dhawan Saab. You know, when you hear this song today and you clap on this song, I remember the time when I actually composed this song with Sameer ji on the lyrics. David's love for something funky was fantastic, and I want to share a beautiful story. This song was made by me, actually. This tune, this formation of the lyrics came to me when I was in Goa with my family. And us zamane mein we used to have these cassettes, to record the song. And yeah, so unfortunately I forgot the cassette. And my daughter Anmol was with me, and I remember, I said, एक दिमाग में tune आ रही है, and David की sitting होने वाली है. Will you remember this tune? So तोतली थी, तोतली के हिसाब से, ऐ जवानी तो ऐसा कर, तो मैंने नहीं, वो नहीं. Ajana chule meri chuniri sanam. She remembered this tune, and when David came for the sitting, said, "कोई ऐसा गाना सुनाओ यार." अच्छा मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है. Suddenly I called Anmol and I said, "यार ये गाना सुन." बेटा मैं जब गाना बनाया था तो याद है ट्यून? हाँ डैडी मुझे याद है. आजाना तुमने मेरी चुनरी सनम. And David heard it. यही तो गाना चाहिए मेरे को. यही तो गाना चाहिए. And the song was born out of the remembrance of my daughter, to be very honest. उसके बाद जब मैं गाने पर शुरू हुआ, रमेश जी आए, सब लोग आए, वाशु जी आए, सभी थे उस माहौल में. But David jumped on the tune, said ये गाना मुझे कल रिकॉर्ड करके दे. And I want to tell you about David. David को गाना अभी पसंद आता है. He wants to record the song tomorrow. अब मजे की बात है, डेविड कल कैसे करें? कल ही होना चाहिए गाना. एंड जितनी भी फिल्में मैंने की हैं डेविड के साथ, एवरी फिल्म इज अ ब्लॉकबस्टर. वेदर इज जुड़वा, वेदर इट इज बीवी नंबर 1, एंड वेदर इज गोइंग टू बी है जवानी तो इश्क होना है. अबाउट वरुण, आई वांट टू जितनी भी फिल्में आपने मेरे साथ भी की, मैं बताता हूँ, मैं वरुण के बारे में बताता हूँ. वरुण वॉज वेरी वेरी स्मॉल. राइजिंग सन में हम जाते थे, मैं बाजा लेके पहुंच जाता था वहाँ, एंड वरुण पर्दे के पीछे खड़ा होता था, पर्दे के पीछे, एंड यूज्ड टू वॉच मी and David working, and I used to see, Varun will not remember this, he used to do a jig on all the Masti Wala songs, then Varun used to dance on the songs. This is the Varun Dhawan, the superstar. I think you should applaud this boy. He was committed to cinema from the day one when I set my sights on him. One of the most cutest, adorable, handsomest person. We love you, Varun. Thank you, we love you. But I love you as well. But in चुनरी चुनरी वो जो आता है चुनरी चुनरी, वो आपकी आवाज है? वो मेरी आवाज है. चुनरी चुनरी वो मैं ही हूँ. नहीं, एक बार आप गा के सुना दो प्लीज, क्योंकि AI के जमाने में लोग बिलीव नहीं करते. please. I think once we got to hear it in the OG's My voice. darling Kumar ji is here.
राजस्थान गिरीश इज हियर, रमेश जी, इनके सामने गाता हूँ, चुनरी 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 चुनरी, आ जाना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी बेरहम। अगर एक्सप्रेशन नहीं गाने में तो गाना नहीं है। सुपर हिट ऑलवेज अनु जी, ऑलवेज। थैंक्स टू समीर जी लिरिक्स। समीर जी, आपने ये क्या सोच के किसके लिए लिखा था पहले, क्योंकि आपके बहुत गर्लफ्रेंड्स थे पहले, या ये जवानी को ये लिख के आपने क्या सोचा था उस वक्त पे जब ये लिखा था? एक तो वरुण, तुझे सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ इस फिल्म के लिए, और तुझे मैं जब भी देखता हूँ तो तुम्हारा वो बचपन मुझे याद आता है। हम लोगों ने सब ने तुमको बचपन में देखा है, और तुम्हारे डैडी ने तुमको कम तंग किया होगा, मुझे बहुत तंग किया है। डेविड धवन की पिक्चर लिखना मतलब उस दिन मेरा ब्लड प्रेशर कम से कम 20 डिग्री ऊपर चढ़ा होता था, क्योंकि ये आदमी नॉर्मल गाना इसको चाहिए नहीं, इसको चाहिए। तो मैं अनु जब बैठूं, यार डेविड का गाना आ गया, अब क्या किया जाए। तो जब मैं रोमांटिक गाने सोच सोच के थक जाता था और डेविड का गाना आया तो मुझे लगा अब थोड़ी मेरी ज़िंदगी में रिलीफ आया, अब डेविड का गाना लिखना हो। ये है जवानी तो, अब है जवानी तो इश्क होना है लाइन तो आ गई। अब उतनी लाइन डेविड को तो समझ में आनी नहीं, क्योंकि डेविड को पंच नहीं मिल रहा है। तो इश्क चांदी है, इश्क सोना है, आया बस डेविड का गाना हो गया, बस बोले तू ले चल। ये ऐसे गाने बनते थे। और इस आदमी ने मुझसे एक बार गलत काम करवाया था, वो मैं आपको बताऊं, मैंने अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला है। बोलिए बोलिए। एक गाना लिखवाया, मैंने बोला डेविड देख मुखड़ा सुपर हिट है मगर तेरी फिल्म में जाएगा नहीं। तो डेविड का एक जुमला होता था, सिचुएशन गई तेल लगाने। तू मुझे हिट गाने दे समीर, तू मुझे हिट गाने दे। और मैंने सुना दिया गाना कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, और पिक्चर में बाप है ही नहीं है। दादा है दादा। और डेविड, दादा भी तो बाप जैसे ही होता है ना। और डेविड बोला, ताली बजाओ डेविड के लिए। डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता है। मगर डेविड, मैं तेरा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। पहली पिक्चर से लेके मेरे ख्याल से इसकी ज़िंदगी में 95% फिल्मों के गाने मेरे हैं। कोई भी नाम ले लो डेविड की, सब फिल्म मेरी। और बिल्कुल सही कहा जी जी, बिल्कुल आज भी आपके ही है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि आज के फिल्म मेकर्स में कन्विक्शन नहीं है, न वो म्यूजिक डायरेक्टर में है, न वो राइटर में है, न वो डायरेक्टर में है। हमने कन्विक्शन से काम किया, जो लिखा वो श्योर था कि हिट होना, और वो हिट होता था। आजकल इतना डिस्कशन, इतनी सारी बातें हो रही हैं और हो कुछ नहीं रहा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कन्विक्शन के साथ काम करो और वो हिट होगा, और वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल डेविड धवन है। सो वंडरफुल सर, इतने खूबसूरत शब्द आपके लिए हो गए डेविड जी। यू नो आई थिंक द लव दैट इज देयर इज सो डीपली रूटेड पूरी इंडस्ट्री के अंदर ही, और मुझे लगता है कि ये बहुत स्पेशल फिल्म है वरुण के साथ भी। वी वर रीडिंग एन आर्टिकल जहाँ आपने कुछ बोला था कि नाउ आई एम वेरी प्राउड दैट आई विल बी नोन एज वरुण्स फादर। ये बहुत खूबसूरत लाइन थी, और आई थिंक वी सी गॉन फ्रॉम वरुण्स बचपन टू यू बिकमिंग known in the industry as you want to be known as his father. I would love to hear about that as well also. This What you want यार, actor तो he's improving, he's become what you want, he can give you that, वो ठीक है। But as a father, if I tell you, I mean, everybody should have a son like that. And like me and Rohit. Yeah, my other son, both of them. you know, I But think chalo, this is a comedy film. We want people to laugh. I think so. I think there's one man who always makes me laugh. Manish Paul. Can we please have him on stage? आइए मनीष। Rajesh ji. Can we please have him on stage? Chunky sir. My father's favorite actor, Chunky Pandey is here. Please, Chunky sir. Ali sir, who's a part of our film. And obviously, none other than the most evergreen actor we all fell in love with in Mohabbat, and we're still in love with him, Jimmy Sherrill. Rajat also. I want Rajat also. He's done every film he does is a hit of mine. Rajat should come here. Rajat ji, please, आइए. Come, sit. You all sit here, na.
Yes, yes. Girish, can we have you on stage as well also? Gentlemen, can we do it, sir? सिया दे दो एक. I think सबसे खूबसूरत बात आज यानी Varun, I think you earned so much respect as a actor also, but today there's a beautiful moment there as well. I think he's a very, very pure soul, and you know he hasn't changed at all in all these years. So well done, brother. And I think ये घर आपका अगर ऐसा हो, it's always like that. Lovely little picture let's have, and then No, we can in fact start Q&A. We can. wait, Varun, let's take a picture first. Okay. तो ऐसे कोई गाड़ी बाहर नहीं है कि yes. पिक्चर तो कुमार से कभी have you on stage? बना देंगे. गिरीश, वो कुमार is जी coming. and गिरीश. गिरीश actually. They're coming. मैं आप सबको बोल दो that this film would मेरा not जान have been गिरीश. possible without Girish. इसने इतनी मेहनत की है. तो please let's have Girish on stage and Kumar ji. I want to call one person. Who? I want to who's been thick and thin with me, worked a lot with me from the beginning until now. He's there, and that is Romi Jafri. I want him to. आइए रूही भाई. गिरीश के लिए मैं एक गाना गाना चाहता हूँ जो मैं सुन के आया था गाड़ी में. इट्स माय फेवरेट सॉन्ग. जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुझ पे मरने लगा क्या बात है? हूँ. इस रमेश जी इसके राइट्स है ना गाने के. हमारे पास सब राइट्स है. चलो. Acha, now once we look in front, Varun, can you put the mic down? Give me Anji, the okay. little down, and then we'll just take a picture. रतन जी को भी प्रणाम. Anu sir, आगे. Everyone just look in front. We'll take a quick picture. Then we'll open out. थैंक यू guys. Okay, Q&A. please, our wonderful friends, जो भी सवाल. Although we're getting so many golden stories here I that think we we didn't should think that also we'd have get. Bose sir. I don't know where he is. Yeah, Bose sir. Boss. Bose sir is gone. He's working on the. No, he's there. The DI. He's coming. Bose sir. Boss please come. Can you please also tell everybody बोस in the audience? मेरे Bose बचपन के sir, 2-3 दोस्त भी है. our DOP. प्रशांत. Yes. Call नहीं them. come please boss come. But let's start with the Q&A. ये लोग Yes, बहुत please. बिजी है भाई. इन लोग को एक और इवेंट जाना है. इवनिंग में आ रहे हो ना? वो 4 बजे के बाद है. अभी हो जाए. Can we just if you just raise your hand and ask the question. You all have done हाँ this more आप than पूछ we पूछ. अरे अरे रितेश आ जा, तू भी पीछे आ जा. Come मेरा editor आ जा. ask. Okay पापा let him ask the question. पूछो. डेविड जी आपके लेफ्ट में हाँ तू बोल ना यार. डेविड जी उस तरफ. दे जी. नमस्ते डेविड जी. My favorite. गणेश जी प्रणाम. डेविड जी आपका लड़का स्टूडेंट बन के आया एंड नाउ बबलू आज भी है. जवान हो गया है एंड इश्क कर रहा है. नेक्स्ट जनरेशन का सुपरस्टार कहते हैं. तो आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे वरुण के बारे में जिस मैं तरह उसको से? बेटे जैसा ही समझता हूँ. वही है, जितना इम्प्रूव करेगा अच्छा है. नज़र आ रहा है इम्प्रूव कर रहा है. ही डज एवरीथिंग. मुझको भी संभालता, अभी तो मेरी भी उम्र हो गई है. सो आई थिंक इज अ ग्रेट सन. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. डेविड जी जिस तरह से आपकी फिल्में मैंने देखी है, जिस तरह से आपके गाने हैं, मैं चाहता हूँ कि आप रिटायरमेंट ना लें अभी. आप अपनी हेल्प मुझे दे दो ना. कि डेविड जी आजकल तो आपको पता ही है फिल्में कोई और बनाता है, पोस्टर पे नाम किसी और डायरेक्टर का रहता है. तो आपके पास तो 2 बेटे हैं, तो आप फिल्में और करते रहिए. नहीं करता रहूँ. मेरा बेटा बनाएगा ना. अभी वो बना रहा है, ये काम कर रहा है. इससे अच्छी क्या बात है. मैं पीछे हूँ. इनको कुछ ज़रूरत कभी भी हो, कुछ पूछना हो, कोई सीन चाहिए होगा तो मैं हूँ. आपकी जवानी के कोई किस्से? मेरी जवानी के उसमें मत जा बोले. अरे छोड़ो यार. थोड़ा सा बताइए. 46 फिल्म बनाए मैंने. मैंने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, गोविंदा जी के बारे में, कादर खान जी के बारे में. कुछ अगर थोड़ा बहुत अगर नहीं, हमें. अच्छा है, सब अच्छा काम किया. They've been one of the best actors I've worked with. That's what I can say. 1 second. अरे बाकी on the right. लोग One हैं. minute. बाकी लोग को पूछो यार. हाँ सर शिफ्ट हो गया. Hello, check. उसको मिला नहीं जो चाहिए था.
Hi, hi, hi. Hi, What's up, hi. what's up? How are you? right. Okay, so let's get the elephant out of the room. We were talking about the legal controversy. Sir, ये जो गाने को लेके हो रहा है, we know that there has been a legal notice. Can you tell us a little about that? And will ji. the promotions of the film get affected because of it or not? Are you guys worried about that? आपको टिप्स चाहिए ना, ये लो टिप्स नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा. इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है. हमारा जो भी था वो सॉर्ट हुआ है और जो भी और आगे भी सॉर्ट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इट्स सब जुडिस मैटर, तो वी आर हैंडलिंग इट. ओके, थैंक यू. वरुण जी, हाँ जी. यहाँ पे विशाल अंबानी. विशाल अंबानी यार, डरा देता है तू सोने में से. हाँ, नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपके डैडी को एंड पूरी टीम को. थैंक यू ब्रदर. बट मेरा पहला सवाल पूजा जी आपसे होगा, दूसरा सवाल आपसे होगा. पूजा जी, सबसे खास बात क्या है वरुण को एज अ कैरेक्टर? हम देखते हैं काफ़ी लोग कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ. आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल क्या लगा वरुण? आई थिंक वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है और बहुत नॉर्मल है. सो दैट वाज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट. एंड आई फील लाइक अगर मुझ में आई थिंक मैंने उसको बहुत तंग किया ये फिल्म पे, बिकॉज मैं थोड़ा डेविड सर को कुछ बोलने में डरती थी. तो आई ओनली हैड वरुण टू टेल ऑल माई इशूज टू एंड माई प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आई फेल्ट अबाउट द सीन. सो सॉरी वरुण, बट ही इज एक्चुअली बिन रियली आई डोंट थिंक एनीवन नोज दिस पब्लिकली, बट पूजा एंड मी आर फ्रॉम द सेम स्कूल. हम लोग एक ही स्कूल गए थे, तभी इस तरीके से दिखती नहीं थी, वो अलग बात है. एक तो 1 second. Varun was my senior, okay, and Varun didn't know I existed because मैं बहुत ही shy थी, and I obviously knew of him, but I didn't really know Did him. he bully you as a senior? Let's just talk about. He didn't know I existed. But what was his? I was too shy, Haan. and he didn't know I existed. Only I think he, Natasha, and my brother were in the same class. Yeah, they were in the same class. But all that aside, चीज़ है जो सलमान सर का फिर से रिक्रिएट कर रहे हो, तो ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वो आइकॉनिक है. हाँ जी. एंड लोगों के मन में आज भी है, लोग आज भी सुनते हैं उस गाने को. करेक्ट. एंड उस गाने को फिर से करना विद अ ट्रू ब्यूटीफुल गाना तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है अपने में. इन दो ब्यूटीफुल कन्याओं के साथ नाचना कितना चैलेंजिंग है, या वो गाना. गाना तो रमेश जी ने बनाया था. वी हर्ड इट फर्स्ट टाइम हम लोग जब स्कॉटलैंड में था. इट्स ऑल द सॉन्ग सब रमेश जी ने बनाया. दे म्यूजिक कंपनी, तो ऑब्वियसली गाने दे ओनली मेक, एंड वेरी वेल ही इज मेड द सॉन्ग. एंड चैलेंजिंग मतलब इन द सेंस, एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई भी गाना मिले, जैसे वाओ भी मिला हमें, यू कमिट टू द सॉन्ग, यू कमिट टू द सिचुएशन. हमारे फिल्म में जो सिचुएशन है जहाँ पे गाना आता है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म आफ्टर ऑल, यू नो. तो वो मस्ती है, वो सिचुएशन है कि डबल ट्रबल है, या आई यू विद वन गर्ल, आई यू विद बोथ द गर्ल्स, क्या मामला है. हाउ, एंड जैसे आपने कहा कि हाउ कैन यू हैंडल 2 सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, जैसे आपने कहा. आप मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं ये सब करता नहीं हूँ, ये सिर्फ स्क्रीन पे होता है. बट बाकी तो हाँ. ये बायोपिक है. नहीं. बाकी पिक्चर में देखो, शायद पिक्चर में एक और लड़की आ जाए एंड में, तो वही मैं बोल रहा था. वरुण ने विशलिस्ट दी थी आपको क्या? नहीं, मैं A to Z जो भी चाहिए, इवन कार चेसेस आते. नहीं, आई थिंक जो ज्यादा रोमांस चल रहा था मनीष और वरुण के बीच में चल रहा था. तो आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि ट्विस्ट ये है कि मनीष के साथ भाग जाता है. थैंक यू सो मच मुझे सवाल पूछने के लिए. थैंक यू ऑल. मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मुझे फिल्म में बहुत मज़ा आया है काम करके. थैंक यू सो मच. 5-6 सवाल मेरी ओर आए, आई नो. लेकिन बस यार मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं कोई परवाह. बॉस मालवीय नगर से आया लड़का हूँ, दिल्ली से. वहाँ पे ब्लैक में टिकटें खरीदी थी जुड़वा फिल्म की, डेविड धवन सर की, और उनकी फिल्म में काम करने का मौका मिला है. इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता. सो सर, लव यू, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू द एंटायर मीडिया एंड जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, बिकॉज ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा हुआ है कि किसी फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च की रिहर्सल हुई. आप लोग रिहर्सल पे आए, बहुत अच्छा लगा, और आज आप एक्चुअल ट्रेलर लॉन्च में भी आ गए, बहुत खुशी हुई है. थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू. Hello. Hi, this side. Hi, this is Amar. What's up, Amar? What's up? All good. Congratulations on the trailer. Looks very fun. My first question is to Mrinal and Pooja. I remember growing up, all films of David sir were those kind of films where my parents were like, let's go together as a family. And even those songs which became viral during
that time the actresses had a strong footing, and they kept on working with them. Now you both are official certified heroines of a David Dhawan film. How do you place this film in your filmography, both of you? I always feel that if a girl can do comedy, like it's a game changer. And I think personally, of course I really love serious films and all of that, but मुझे ऐसे लगता है कि पैकअप के बाद जब मैं घर जाती हूँ और मुझे अनवाइंड करना है तो मैं हमेशा कॉमेडी, I watch something which has comedy in it, right? So I always wanted to be part of a good comedy film, and of course David sir has had these iconic heroines, whether it was Karishma Kapoor or Sushmita, Juhi Chawla, and the one common thing was that they could really do comedy. So for me, that is a very important part of if you want to be a commercial entertainer. And it was my vacation film, to be honest. क्योंकि तब मैं बहुत serious films कर रही थी, and I feel like David sir के साथ इतना like 4 बजे पैकअप हो जाता था. ओके, वी हैड टू स्लो हिम डाउन, बी लाइक कि थोड़ा और यू नो शूट कर लो यहाँ पे. एंड आई थिंक ही ऑल्सो स्पॉइल्स यू एज एन एक्टर बिकॉज ही नोज इज एडिट. वो बहुत फास्ट शूट करते हैं. तो नाउ व्हेन आई गो ऑन डिफरेंट सेट्स आई फील लाइक ये सीन तो डेविड सर आधे घंटे में ख़त्म कर देते. दैट्स माई गेम आई प्ले व्हेन आई एम ऑन डिफरेंट सेट्स. सो आई थिंक दैट ही स्पॉइल्ड अस. सो इन योर फिल्म, इन माई फिल्मोग्राफी, आई फील like I want to entertain people, I want to make them laugh, and I hope I do that with this film. I just want to say one thing. बार बार आप लोग से comedy film, comedy. I make entertainment films. I don't call it comedy. And my guru has been Manmohan Desai. I follow. That's my guru. The highest grade of entertainment. Hello everyone. Hi. Sorry. Yeah. One more question, sir. One second. Let Mrunal also answer that. You said both the heroines, right? Yeah. Yeah, you know, when I first met David G over a cup of chai, I had no idea what the film is, who's the hero, what is the story. I think that 45 minutes of conversation with Sir, and he's just told me one thing: Mrunal, you're a good actor. I want to give you, present you a role which, you know, which will bring out the funny side of you as well. Because like Pooja said, I have only been a part of filmography which was so serious, either like thriller or something like that. But as an actor, if I'm entering into a comedy genre, an entertainment, a commercial entertainment movie, it has to be a David Dhawan film. And I honestly wish David sir, I wish I would have met him many moons ago, that, you know, I would have had a chance to work with him. And in my head I was like, sir, ye please 3 film deal karna zarur. But having said that, it was such an honor, sir, working, and I feel my comedy timing has become better after this movie. You know, before we take any questions, actually there's one man who's worked so much with my father in his initial part of his career and now. In his, yeah. David, they were talking about your Jawani. But let me tell you all something. लोग अक्सर पिक्चर की शूट करके एडिट करते हैं. डेविड धवन जी तो शूटिंग करते वक्त ही एडिटिंग कर लेते हैं. That's So true. you never know when your role is going to get chopped if you're not performing well. But Govinda and I had this one thing, जब हम आँखें की शूटिंग करते थे, you know, when you're performing, तब हम लोग के पास वो monitors नहीं होते थे to check the shot. तो हम लोग डेविड के एक्सप्रेशन देखते जाते थे, how he is reacting, because जब actor perform करता है, David G used to be behind the camera and he would be actually living that character. And all the characters, he would play all 5 characters, you could see the expression on his face, and that's why he makes these films. He lives it. He lives it, yeah. It's all Jimmy sir, you, आपका experience, because you've also done a lot of serious cinema, different kind of cinema, obviously. या आई थिंक मेरे लिए तो मैं 92 में आया था बॉम्बे, और ये ड्रीम्स थी कि ये बड़े अच्छे एक्टर बन जाएं या सीरियस एक्टर. लेकिन उस वक्त भी जो है हर महीने दूसरे महीने डेविड जी की एक फिल्म आती थी, ब्लॉकबस्टर होती थी हमेशा, और हमेशा दिमाग में एक ही होता था कि दिमाग में चल रहा होता था कि डेविड जी के साथ काम करने का कभी मौका मिला तो फिर क्या होगा. एंड लाइक दे से दैट यू विश फॉर समथिंग एंड इट डज कम ट्रू. एंड 35-36 साल के बाद आज मैं एक फिल्म जो है डेविड जी के साथ कर रहा हूँ.
एंड इट्स अमेजिंग. मतलब मजा आ गया. आई तो टोल्ड हिम वाइल शूटिंग दिस ओनली, आई सेड डेविड जी ये जब तक इसका पोस्ट चल रहा होगा दूसरी शुरू कर दो. But I also tell you something about Jimmy sir. He's the only actor who's always working. You know, you take any kind of film in any language also, Jimmy Shergill has somehow never seems to be out of work also. Big round of applause for him also. It's incredible. He maintains the way he looks. Everything is the same. You go back the number of years, you'll be shocked that इतना लंबा टाइम भी हो चुका है. And he's काश very इसको funny in बेचारे this को film. कोई बता सके कि कितने महीने घर पे भी बैठे. अरे नहीं सर. एक लुक में फंस जाओ, दाढ़ी दूढ़ी उगा के उसके बाद 2 साल 2.5 साल बैठे रहो घर पे. Roshish. सवाल हैं कि Hello everyone. Hi, Amit Bhatia this side. Bhatia ji. David sir. Hello here. यहाँ सर here. सर आपको सुनना आपको देखना बहुत नॉस्टैल्जिक है हम सब के लिए. हमने तो मतलब आपका सिनेमा तो आई थिंक ट्रेलर पे भी हर फ्रेम पे स्टैम्प है डेविड धवन फिल्म की. और आप बहुत सेहतमंद रहें, मतलब हम सब यही चाहेंगे क्योंकि बहुत फिल्में आप और बनाएं. मेरे 2 सवाल, एक वरुण से है और एक राजेश जी से है. वरुण, जब डेविड धवन की फिल्म होती है तो वो डेविड धवन की फिल्म होती है, उसमें कोई कितना बड़ा सुपरस्टार हो दैट इज सेकेंडरी, बट अभी हम देखने जाते हैं कि डेविड धवन की फिल्म है. तो डेविड धवन का हीरो बनना वो कितना इजी है, कितना मुश्किल है बीइंग, क्योंकि वो आपके पापा भी हैं. और राजेश जी, ये आपकी हमारी बात भी हुई थी. लास्ट रिकमेंडेशन, बड़ा खूबसूरत किस्सा है इस फिल्म के साथ. तो पहले मैं चाहूंगा वरुण जवाब दें एंड देन आप इस सवाल का जवाब. अमित देखिए, इनके साथ काम करना ना मतलब आग के साथ खेलना होता है. बिकॉज एज एन एक्टर यू हैव टू बी रेडी. ही कैन गिव यू एनी काइंड ऑफ सीन, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. 1 मिनट में थॉट आएगा कि यार टॉक इन दिस एक्सेंट, ये करके बताओ या वो करके दिखाओ या ऐसे बोलो या ये डायलॉग ऐसे बोलो. तो यू आर ऑलवेज मतलब इन द लाइन ऑफ फायर. आप कैसे परफॉर्म करोगे. यू हैव टू बी अ वेरी गुड एक्टर टू डू वेल इन हिज सिनेमा एंड दैट्स व्हाई ही कास्ट ओनली गुड एक्टर्स. आप देखेंगे आई थिंक अली भाई, ये आपकी आप कौन सी नंबर फिल्म है आपकी? आई थिंक 4th या 5th. 4th या 5th? 5th आई थिंक. 5th फिल्म. मतलब एनी फिल्म इज देयर इज अ रोल फॉर अली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक इट वाज जुड़वा 2. उसमें तो कैरेक्टर ही नहीं था, तुम कर रहा है मेरे साथ, बस इतना था. एंड लंदन पहुंच गया, सीधा सेट पे गया, क्या करेगा तू बोल. एंड 3 सीन हो गए एंड मज़ेदार मतलब. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सारे एक्टर्स यहाँ सबने यही कहा कि आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है. एंड सबसे बड़ी बात जो एक्टर्स के लिए है, हम कभी ना कभी किसी को चीट कर लेते हैं. अरे यार ठीक है 19-20 कर लेते, इनको चीट नहीं कर सकते आप इनको चीट कर ही नहीं सकते. ये मतलब कहाँ से क्या चीज़ ढूंढ के निकालेंगे. से चंकी सर ने कहा कि ऑन द सेट ही एडिटिंग होती है और बोलते हैं तू जल्दी कर ले नहीं तो मैं काट दूंगा. और एक लाइन जो मनीष, ये सबसे ज्यादा मैंने सुना है. हाँ, जो मैंने भी सुना, रबड़ मत कर. तू रबड़ मत कर. तो ये ऑनेस्टली प्रिविलेज है हमारे लिए, हम सब के लिए, और तरसते ये लाइन सुनने के लिए है ना कि रबड़ मत कर. पर एक बात मैं सर की बोलना चाहता हूँ यार, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. और इनका बड़प्पन ये है, ये खुद एक्टर्स को कॉल करके बुलाते हैं. ये नहीं होता कोई टीम से कॉल कर रहा है. मुझे याद है कुछ सीन करने थे, मैं कहीं और शूट कर रहा था, इनका कॉल आता है, मनीष किधर है. मैं सर मैं कहीं, हाँ तू पहुंच महबूब स्टूडियो पहुंच. मैं सर मैं शूट कर, अरे मैं तेरे को कॉल कर रहा हूँ तू पहुंच. मैंने कहा अच्छा. मैं वहां पहुंचा, इन्होंने पकड़ के 3 सीन पेल दिए मेरे साथ फटाफट. 5-10 मिनट में इन्होंने बताया टक टक टक. बट ये बहुत कमाल की बात है. एक बार जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए. आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू लर्न दैट कि सिर्फ टीम कॉल ना करे, वो खुद कॉल करते हैं. राजेश जी, और आपकी जो अमित, so thank you so much everyone and thank you David sir for this great opportunity. तो जब मेरी कास्टिंग की बात चल रही थी तो मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से तो फ़ोन आया ही था. डेविड सर से भी बात हुई. डेविड सर वेटेड फॉर मी टू कम बैक टू इंडिया and he actually waited for 25 days to meet me. But there was this one man, that is why I say that this film will be emotionally, I'll be very attached to this film because this, I consider it as the last recommendation by Satish Shah. बिकॉज सतीश जी इनके बैचमेट भी थे, इनके बहुत परम मित्र हैं. और सतीश जी से डेविड सर ने पूछा था कि राजेश कैसा एक्टर है, एंड ही रिकमेंडेड माई नेम. एंड सतीश जी कॉल्ड मी अप एंड सेड कि तू डेविड धवन की फिल्म कर रहा है. सो दैट्स व्हाट द स्टोरी वाज. सो वेरेवर ही इज, आई थिंक ही इज ब्लेसिंग अस विद दिस ग्रेट फिल्म एंड वी आर पार्ट ऑफ.
and someone who's, I think, my dad's first call in the morning, Mr. Rumi Jaffrey. I don't think he tells my mother good morning. हाँ रूमी उड़ गया. मतलब मैं 30 साल से ही सुन रहा हूँ, हाँ रूमी उड़ गया. मतलब ये बेचारे उठे भी नहीं होंगे तो वो उठ ही जाए थे, हो गया. हनान भाभी मतलब ये वरुण ने बिल्कुल सही बोला. डेविड साहब को पता है मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, ये जल्दी, फिर भी इनका फोन आता है, सो रहा है, चल उठ जाता, फोन कर. खैर लेकिन मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया मुंबई और फिल्मों में काम शुरू किया, जब डेविड साहब की पहली फिल्म लिखने गया तो मुझे लगा मैं एज ए राइटर जा रहा हूँ. मुझे नहीं पता था कि मुझे पूरा परिवार मिल जाएगा. मेरा अपना परिवार तो भोपाल में है. मुंबई में अगर मेरा कोई परिवार है मेरा, तो डेविड साहब, वरुण, रोहित, लाली भाभी, इवन लाली भाभी की सिस्टर्स, डेविड साहब के भाई अनिल भाई साहब, रोहित, वरुण, ये सब मेरे अपने सगे परिवार के लोग हैं यहाँ पे. हमारा रिश्ता काम से बहुत आगे निकल गया है. दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जब मैं दूसरे लोगों के साथ काम करता हूँ तो पता लगता है, आपको पता है डेविड साहब और मैंने डेविड साहब के लिए 21 फिल्में लिखी. आज एक फिल्म लिखने में आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है कि 2-2 साल नहीं लिख पाते. और समझ में नहीं आता, हम कभी डेविड साहब बात करते हैं कि कैसे लिख ली, कब बन गई, पता ही नहीं चला. हंसते खेलते फिल्में इतनी बन गई. और मुझे एक और खाली मैं किस्सा डेविड साहब सॉरी बताना चाहता हूँ कि डेविड साहब कितने इन्वॉल्व होते हैं और कितने अपनी चीज़ों को लेकर ज़िद्दी हैं. समीर साहब ने सुनाया, एक और गाना था हमारी फिल्म जुड़वा का, जब गाना रिकॉर्ड हुआ, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, तो साजिद ने मुझसे कहा, रूमी ये क्या गाना रिकॉर्ड किया डेविड? मैं क्यों? बोले बंगले में रहती है. तो मैंने डेविड साहब से कहा, मैं साजिद बंगले में लिफ्ट ढूंढ रहा है. बोले उसको बोल खामोश रहे, मेरे मामले में बोलना नहीं, सुपरहिट गाना मैं करूँगा. तो और दूसरी बात, शूटिंग पे एक्टर के साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो रिहर्सल होती है उसी में उनको पता लग जाता है कि ये काटना है. तो एक बार बड़ा अच्छा शॉट था, गोविंदा से इनकी मोहब्बत कमाल है, ये मैं आप सबको बता रहा हूँ आज तक. तो वो गोविंदा शॉट दे रहा है, ये ऐसे देखते हैं, चलते जाते कट, ओके. तो कैमरामैन ने कहा नहीं. बोले क्यों? बोले आप आ गए चलते चलते फ्रेम में. तो खैर मेरी दिल से दुआ है, पूरे पूजा यहाँ बैठी, इनको भी मैं, वरुण मालूम है, ये जब 8 में थी तब से जानता हूँ, जब ये हीरोइन नहीं बनी थी. और इनसे मैंने तब कहा था, इनके मम्मी डैडी बैठे हैं, कि ये बड़े होके हीरोइन बनेगी. पूछो क्या बात कर रहे हो. तो मेरी दिल से दुआ है कि है जवानी तो इश्क होना बहुत बड़ी हिट हो. सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू. आई हैव टू से रूमी जी दैट इट वाज वेरी ट्रू. और तब मेरे सपने में भी नहीं था कि मैं हीरोइन बनूंगी, या फिर लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी अकेडमिकली ड्रिवन फैमिली, और मेरी फैमिली में किसी ने भी ये फील्ड में कुछ भी लाइक रिलेटेड भी नहीं किया था. तो व्हेन आई गो टू फिल्म्स आई ओनली यूज्ड टू वॉच इट एज अ फिल्म. तो मुझे आई डिडंट इवन थिंक इट वाज लाइक अ जॉब दैट वाज पॉसिबल. एंड आई रिमेंबर रूमी सर हैड टोल्ड मी कि आपको ना फिल्मों में ट्राई करना चाहिए. एंड आई वाज लाइक नहीं रूमी जी, मुझे नहीं पता नहीं. सो इट्स लाइक अ होम थिंग दैट ही इज हियर टुडे. थैंक यू. Actually, before we go ahead, my chacha is in the audience. Mr. Anil Dhawan, the legendary Anil Dhawan is here. He's the fittest Dhawan, like I say, the fittest Dhawan. चाचा, आपको अगर आपके छोटे भाई से कुछ, मैं अगर आज इस लाइन में हूँ, आई हैव कम हियर बिकॉज ऑफ हिम. ही इज द मेन रीजन ऑफ मी सिटिंग हियर, एंड बिकॉज ऑफ मी ही इज हियर. सो यू नो इट इज ऑलवेज लाइक दैट. we are all there because मैं of वही my सोचता chacha. था, अगर अनिल भाई साहब फिल्म लाइन में नहीं आते, कहीं और काम कर रहे हो, तो मैं भी वहीं कहीं काम कर रहा होता. सो जस्ट सी द क्रेडिट व्हाट ही केम, ही स्ट्रगल्ड, एंड दैट्स हाउ. I know he's a certain age right now. He's not at the age that we can give him advice, but there's one man who can give him advice. That's Mr. Anil Dhawan. Yeah. If someone can give my chacha the mic, chacha, any advice you want to give your younger brother? कुछ रोहित मेरे को बहुत एडवाइस देता है. तो नहीं, एडवाइस तो मैं नहीं दूंगा, बट ऑलवेज आई ट्रीटेड हिम लाइक अ चाइल्ड. मगर बड़े होने के बाद ही वॉज वेरी पॉजेसिव ऑफ मी, एंड हमेशा ये ख्याल रखेगा कि मैं ठीक हूँ, मेरे को ये चाहिए, ये मिल गया, यहाँ बैठना है, ये करना है, वो करना है. तो मैं उसको बोलता हूँ, मैं जब तुम्हारे नज़दीक होता हूँ तुम कंफर्टेबल क्यों नहीं होते हो? तुम मेरे बारे क्यों हमेशा तुम फिक्र करता रहेगा? अभी भी वहाँ बैठे बैठे ही विल बी थिंकिंग वेयर आई एम ओके,
एंड वी हैड अ लवली रिलेशनशिप. कमाल की रिलेशनशिप रही है हमारी साथ में. और लाइक अ चाइल्ड, स्कूल में हम लोग दोनों थे, कॉलेज में भी साथ में थे. एंड ही मेड लवली फिल्म्स. कुछ कई फिल्मों में मैंने इसके साथ काम किया. एंड आई वॉज ऑल थ्रू माई लाइफ वेरी बिजी डूइंग लवली फिल्म्स. I did a lot of films in the cinema. I have completed 56 years in cinema. And still I'm working at this age. And you know, whenever I have a fight with him, कुछ बात में discussion होता था, I used to tell him, I'm 74 and you know me from 74 years. Yes. Do you know anyone? Your wife, your children, anyone? It's me. He was very caring. He's very possessive of me. And I have to be very away from him. मैंने कहा तू कपड़े बना कर. I'm okay, lovely. And we both enjoyed. We had a lovely evening, both of it in the cinema. Thank you. God bless you. I have a question for Varun. Varun, here again. Right from Student of the Year to Sunny Sanskar, you have always given a lot of songs which are original compositions, which are super hits. But we have seen this trend that a lot of retro songs are being used in the film. You have also done such films, like in recent film like a Dhurandhar, we see a lot of retro songs being played, and they add to the nostalgia. What do you prefer? Honestly, I feel it's a bit of both because nostalgia plays a very big thing. I mean, if in a it's the way you use the music. See, the music should be part of what you're trying to tell or what the director's vision is in that sense, you know. And if it furthers the vision, then why not? For example, Border had Sande Se Aate, but it also had Mitti Ke Bete. It was a mixed bag of a lot of songs. It has a lot of Anu sir's original compositions and some of Mithun's newer compositions as well. And same with this, we have some lovely songs which are Anu sir's songs and Sameer sir's songs in this. But we also have a song by Tanish Bakshi and Gil, a Punjabi composition called Wow, which has become wow now. But I'll tell you what, in 2026, making an original composition work is tougher. So with Wow, it was very tough that how do we make, we know कि ये गाने जब आएंगे तो चलेगी क्योंकि already चल गए हैं. They're already unbelievable melodies, compositions. That's why they've lived till today. But original गाने को आप कैसे चलाओगे आज? So that's why when we got this word wow, I said yeah, wow तो हर बच्चा बोल सकता है, हर बड़ा बोल सकता है और बोलते रहते हैं लोग wow wow wow. सैफ ने कितनी बार बोला है? Wow. तो ये मेरे जहन में था कि ये this will work in somehow and it's a very good original new composition. And we have two other songs from Sachin Jigar as well, which are lovely songs as well. So we have everything. There's original, there's nostalgia. It's a mixed bag of a lot of emotions. But the main thing is we are promising you a great time in the theaters. You know, we are promising you a lot of comedy. Thank you. Hi, Rajat को देना. Rajat sir, आप कुछ बोलिए. After this, what we'll do is, after Rajat, I think we've had enough questions. We'll take one or two questions in the end, then we'll end. Hi, Neola, this side from Bollywood Bubble. One sec. First, let me Okay, have cool, a chat cool. and then. Well, this is my third film as an actor with David Saab. Okay, I worked with My him. lucky charm, huh? Thank you, David Saab. This is your love for me that you always make me a part of your venture. And let me tell you one thing. You know, everybody's spoken such high words. Made it so emotional. That David Saab, I did 3 films with him, and I have known him for very close quarters in the last 7-8 years, and I've spent a lot of time with him. David Dhawan is not an icon. David Dhawan is a legend. He's done 46 films as a maker. He's a legend. Okay, I rank him as a filmmaker. If I have to choose the 4 biggest filmmakers of this country, they would be Mehboob Khan, Raj Kapoor, Manmohan Desai, and David Dhawan. This is David Dhawan's contribution to cinema, that we all are here in his 46th film. And also remember one thing, this man's energy is untouched. I've traveled all over the world with him. He is something else. He wakes up before everybody. Okay, like everybody knows, discipline eats talent for breakfast, okay? And this man is got the discipline. He's awake in the morning, he's there with his shoes and socks. We've traveled to different parts of the world. And he is an energetic bomb. One person in Tashkent called me, the GM of the hotel called me and told me, sir, there's a gentleman from your group, Mr. Dhawan. I said, yeah.
He's at the breakfast every day at 5:30 in the morning. Yeah, that's a fact. So he's a legend. He's not, when you say entertainment and comedy is a wrong word. He's a commercial filmmaker who understands commerce. He understands commerce. That's why every producer wants to repeat him, and repeat him. No producer repeats directors so easily, whether it's success or not. But every producer wants to repeat him. Big hand for David Dhawan, a legend, a true legend. क्या बात. One last question, Yes, and then we'll please, wrap it. Neola. I'm Neola from Bollywood Bubble. My first question will be for David sir and Varun you. I would like to ask you कि David Dhawan Film Festival चल रहा है and मैं तेरा हीरो release हो गया है. How do you both feel about it? Great यार, कल तो टिकट भी नहीं मिल रही थी. Yes, exactly. Varun, what about you? It's for me it's crazy that I'm seeing this, that a film of mine is re-released and people are going and tagging me and telling me about that experience, and also a little weird because they're like, oh, we grew up on this film. So I've kind of reached that weird age where No. You have it. I don't know, like all kids are like, oh, when we were 8 you were our favorite hero, and I'm like, now who's your favorite hero? So then it gets weird. But No, today my film Aankhein, which is the biggest blockbuster I have given, is releasing today. yeah, it's re-releasing. Actually, Aankhein is also being shown today. And I must talk In the about evening. one person, that is the man who made the film, that was Pehlaj Nehlani. A great maker. I am today because of him, I would say. I thank the entire cast. Thank you so much, guys. Just one We- last question, please. Yeah. Just one last question. Here. Jaldi पूछ लो. Here. Yeah. where? Push le, One push. is one is for Varun and the other one is for Manish. अरे वाह, एक मिनट. Go for it. So Varun, people have loved you for films like Student of the Year, मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2, characters like this. बीच में आपने काफी intense acting करनी शुरू कर दी थी, for which also people loved you. But कैसा लग रहा है वापस उस space में वापस आकर for a film like this? It's great, yeah. As an actor, you do what your producers and directors give you, what scripts are there. In the future, I'm on a lookout now to do something totally out of the box because cinema is changing at such a rapid pace. To get people's attention is really tough. This is a space that I love doing. I love doing it. I love being in his films. I love doing this comedy. But if I don't get that kind of comedy, I don't know which comedy I'll do next because if I don't get that kind of energy when I'm on set and in the script, I don't know when I'll do a comedy next now. Thank you So so for now, I'm excited to be in this space because it's quite crazy. It's not for people who are very woke. I have to say that. It's quite wild. There are jokes between me and Rajat in this, which are quite wild. So yeah, we'll see. Thank you so much. Manish से मेरा एक सवाल है. हाँ, एक मिनट. हाँ, पूछ भाई, Manish, पूछ. people आज के टाइम पे एक्टर्स को काफी टाइप कास्ट कर दिया जाता है, टाइप कास्ट हो जाते हैं कि ये सर्टेन तरह का जॉनरा पकड़ते हैं. यू हैव ऑलवेज बीन वर्किंग इन डिफरेंट जॉनरा, बीट हॉरर, बीट कॉमेडी, एंड आल्सो नाउ यू आर डूइंग अ रोम कॉम, आल्सो लीडिंग अ रोम कॉम. हाउ डज इट फील टू बी वर्किंग एट डिफरेंट स्पेसेस एट डिफरेंट जॉनरास? यार मुझे नहीं पता टाइप कास्ट वगैरह. देखो सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं कुछ अलग करो. मुझे लगता है मैं अलग क्यों करूं? लोग मुझे ऐसे ही इतना प्यार करते हैं. सो आई थिंक जो आप कर रहे हो उसको ऑनेस्टी से अच्छे से करते रहो, लोगों का प्यार मिलता है. किसी ने कहा है चलती गाड़ी का बोनेट नहीं चलता. करेक्ट, बिल्कुल यही बात सर ने कहा और उसको हम फॉलो करते हैं बॉस. थैंक यू guys. What a trip down memory lane. A big round of applause for everybody on stage. We'll just remove the just careful. I think we got more content for years and years than we've ever wanted. It's fantastic. Thank you. Soon, Baba, soon, Baba, soon. Giovanni, yeah, everybody knows all the best things that come between him and seeing to do.
जवानी इस उम्र में तो होता देह जग सोता है जवानी ची- 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 कभी हंसना है कभी रोना है कभी हंसना है कभी ए जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना